Hello students, I Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi. We will discuss about the 11th class first chapter, The Portrait of a Lady, revision of its revision. So let's before starting the story of this chapter, let's discuss about the background of this chapter. In this chapter, as you know, the title, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh, the writer is Khushwant Singh, and he was highlighting about his grandmother. And as you know that according to the title, we can understand that he was completely describing what kind of lady and what kind of nature she have, the grandmother have. Clear? So the portrait of a lady, portrait means the handmade picture. The first question arises, what is this do you think that the title is completely appropriate for this chapter? So yes, the title is completely appropriate. The portrait means the handmade picture of a person. So in this chapter, the writer was highlighting in written what kind of lady his grandmother was. Clear? So the title was completely appropriate for this chapter. So in this chapter, he highlighted about his grandmother and the bonding between him and his grandmother. Okay, so let's start with this chapter. As you know that we have already discussed that once as this chapter was starting, he was there in a room and he was looking on a picture. Clear? So what he said that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो कहता है कि इस टाइम पे when जब वो लिख रहा है इन सब चीज़ों को, तो वो क्या कह रहा है, मैं 20 साल का हूँ और मैंने अपनी ग्रैंड मदर को वैसा ही देखा है जैसी वो, मतलब हर एक की जैसे ग्रैंड मदर होती है कि रिंकल्ड फेस होता है, ओल्ड होती है. सो शी वॉज, वो बिल्कुल वैसी ही बूढ़ी है जैसे वो, मतलब जब से वो 20 साल से देख रहा है अपनी ग्रैंड मदर को, एंड शी वॉज द सेम. क्लियर? मतलब वो कहता है कि वो इतनी बूढ़ी है कि उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती. क्लियर? सो आई हैड नोन हर. People said that she had once been young and pretty and have been had a husband. क्लियर? मतलब उसको समझ वो जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसने अपने आप को उनको समझने की कोशिश की है, ही फाइंड दैट शी वॉज ऑल अलोन एंड शी यूज टू बी वेरी ओल्ड. क्लियर? बट शी केम टू नो फ्रॉम अदर पर्सन दैट शी वॉज वेरी प्रिटी व्हेन शी वॉज यंग एंड शी वॉज हैविंग अ हस्बैंड एज वेल. सो इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट टू मेक हिम believe on that she can be young and she can be pretty in her young age. Clear? So he said the same, it is hard to believe. My grandmother portrait hang above the mantelpiece in the drawing room. वो एक drawing room में, वो कहता है कि he was standing in a room and एक picture hang की हुई है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इन दिस इज द ओनली पॉइंट व्हेन ही वाज डिस्कसिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर. व्हाट ही सेड, ही वॉर अ क्वेश्चन कैन बी देयर, डिस्कस अबाउट द अपीयरेंस ऑफ हिज ग्रैंडफादर. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड loose fitting clothes. His long white beard covered with the best part of his chest, and he looked at the rest of 100 years old. क्लियर? सो यहाँ पे एक पिक्चर टंगी हुई है उनके ग्रैंडफादर की. तो उनको देखकर क्या लगता है कि उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन पहना हुआ, उनके जो ग्रे बियर्ड है वो उनके ऑलमोस्ट चेस्ट को, आधे से ज़्यादा चेस्ट को कवर करती है. क्लियर? और उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत करीबन 100 सालों के होंगे. क्लियर? दिस वॉज द ओनली पॉइंट व्हेन ही वाज डिस्कसिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर. और उससे पहले वो क्या कहता है, तो यहाँ पे हमें अभी तक क्या है, 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज what kind of thought he have about his grandmother. He said that my grandmother is as same as the other's grandmother. She was old and her face was full of wrinkled. Clear? So what kind of thing he was not able to believe? First, about his grandmother, he was not able to believe that once she can be pretty and young. क्लियर? एंड व्हाट डिड ही डिस्कस अबाउट हिज ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर के बारे में क्या डिस्कस करते हैं, वो एक पिक्चर के थ्रू ही उन्होंने, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज नॉट अलाइव एट दैट टाइम व्हेन ही टेक बर्थ. क्लियर? सो what he said that I saw my grandfather in a picture. He was having a big turban and he have a great white beard, and उनको देख के लगता है कि वो करीबन 100 साल के होंगे. क्लियर? सो यहाँ से क्लियर उनको पता चलता है. तो 3 क्वेश्चंस आर देयर इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोर्शन. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. सो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन. वो कहते हैं कि वो उस तरह का पर्सन ही नजर नहीं आते दैट
ही वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। अब समझ रहे हैं, क्योंकि जब वो जिस टाइम की वो पिक्चर है उनके ग्रैंडफादर की, वो उस टाइम पे बूढ़े से नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि वो करीबन 100 साल के होंगे, उनको देखकर लगता नहीं है कि उनकी वाइफ भी होगी या उनके बच्चे होंगे। सिर्फ होता है ही लुक्ड एज ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। क्लियर? सो उस पिक्चर में हिज ग्रैंड फादर वॉज क्वाइट old. Clear? As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Why he said this? The thought was almost revolting because it was completely hard to believe that जब से उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को देखा है, वो बूढ़ी हैं, रिंकल्ड फेस पे हैं और वो वैसी ही हैं जैसी वो हैं। क्लियर? सो उस चीज़ को वो कहता है कि मैं 20 सालों से अपनी ग्रैंडमदर को जैसा देख रहा हूँ वैसे ही हैं आज भी। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट सा उनको लगता है कि वो ऐसा इसको बिलीव कर पाना दैट वंस शी कैन बी young and pretty. She often told us the games she used to play as a child. अब देखो, जैसे कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को अपनी स्टोरीज बताते हैं कि हम बचपन में ऐसे करते थे वैसे करते थे। लेकिन यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है वो कहते हैं कि मुझे बिलीव ही नहीं होता था। यहाँ पे वो कहते हैं कि लाइक ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स। क्लियर? और वो फेबल्स मतलब कहीं वो कहते हैं बनी बनाई बातें, और कुछ ऐसे जैसे पोर्ट्रेट किया गया कि हाँ भी ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता है, जस्ट अ फेक एलिमेंट। क्लियर? इट सेम क्वाइट अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब बहुत ही ये मतलब मेरी ग्रैंड मदर ऐसे ऐसे भी गेम्स खेलते, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हम पेड़ों पे चढ़ के आम तोड़ते थे, हम उनके खेतों में घुस जाते थे, ऐसा कुछ जो लिमिटेड जो एलिमेंट्स स्टोरीज होती हैं। शी यूज टू टेल टू हर ग्रैंडसन। बट जो ग्रैंडसन है उनको ये चीज़ें ना अजीब लगती थी कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी जो ग्रैंड मदर वो इतनी ओल्ड है वो इस तरह की शरारतें करती हैं। क्योंकि जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं तो बहुत ही वाइज और बहुत ही डिग्निफाइड नज़र आते हैं। करेक्ट? तो उनके लिए वो थोड़ा सा अनडिग्निफाइड था और फेबल एलिमेंट्स नज़र आते थे, तो इसीलिए वो उन चीज़ों को बिलीव नहीं करता था। शी हैड ऑलवेज बीन सो। अब यहाँ पे दिस इज द यू कैन से the appearance of she being short and fat and slightly bent. तो यहाँ पे appearance दिखाया उनकी ग्रैंडमदर का कि वो थोड़ी सी short heighted हैं, fat हैं, और उनका जो body है वो slightly banded है। Her face was criss-cross wrinkled and running from everywhere. मतलब उनके चेहरे पे हर जगह से इधर उधर जहाँ से भी हो वहाँ पे जो उनके चेहरे हैं पे जो झुर्रियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Clear? So this is the way how Khushwant Singh describe about his grandmother and grandfather. Clear? I hope you understand this chapter in this portion. In our next video we'll discuss about the rest portion of the chapter. Okay, thank you.